کے بڑے ذخائر ملنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق غوری بلاک کے ڈھاریاں ایک معدنی کنویں سے تیل دریافت ہوا ہے۔ ڈھاریاں 1 سے 372 بیرل یومیہ خام تیل ملنے کی توقع ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کی یہ پنجاب میں دوسری بڑی دریافت ہے۔ تیل کی نئی دریافت تحصیل گوجر خان کے قریب ڈھاریاں ایک کے مقام پر کی گئی۔ اسی پر ہم بات کریں گے ریاض تھیم سے۔ ریاض، آپ بتا پائیں گے اس تیل کا مقام کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ جی، پیٹرولیم ڈویژن نے جو غوری بلاک میں لائسنس جاری کیا تھا ماڑی پیٹرولیم کو، وہاں پر انہوں نے ڈرلنگ کی ہے اور وہاں تک ابھی تک سیسمک سروے کے مطابق جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ماڑی پیٹرولیم کے مطابق ڈھاریاں 1 جو ہے غوری بلاک کا، اس میں 372 بیرل یومیہ خام تیل ملنے کا امکان ہے اور ابھی ڈرلنگ کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ تیل کا بڑا ذخیرہ ملا تو پاکستان میں جو تیل کا بحران ہے یا انرجی بحران ہے اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اور یہ کہنا ہے ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کا، پاکستان اس وقت اپنی تیل کی جو 70% ضروریات ہے وہ درآمدی تیل سے پوری کر رہا ہے اور پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اگر یہ وسیع ذخائر سے اچھی دریافتیں ملنا شروع ہو جائیں تو پاکستان کی جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور جو پاکستان میں کام کرنے والی تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ مختلف بلاکس میں تیل تلاش کر رہی ہیں۔ اور یہ خوشخبری آئی ہے گجر خان کے قریب ڈھاریاں 1 غوری بلاک سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض تھیم آپ کا۔ جبکہ کابینہ ڈویژن نے وزیروں، مشیروں اور معاون خصوصی کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ کابینہ ڈویژن کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ نئی فہرست کے مطابق اسد عمر اور رامر کیانی اپنے عہدوں پر بدستور براجمان ہے۔ فواد چودھری کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا۔ نئے معاونین خصوصی کے نام بھی شامل، وزیر مملکت کا درجہ ہوگا۔ معاون خصوصی کی تعداد 13 ہو گئی ہے جبکہ وفاقی وزراء کی تعداد 25 ہے۔ وزرائے مملکت کی تعداد 5 اور وزیر اعظم کے مشیروں کی تعداد 4 ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے۔ شہباز، بتائیے گا اس بارے میں۔ شہباز احمد سے ہم رابطہ قائم کریں گے۔ کیبنٹ ڈویژن نے وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کی نئی فہرست جاری کی ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کی نااہلی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ نئی فہرست کے مطابق اسد عمر اور عامر کیانی اپنے عہدوں پر بدستور براجمان ہیں جبکہ فواد چودھری کا قلمدان تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے۔ شہباز، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ نئی لسٹ جو وفاقی وزراء کی جاری کی گئی ہے اس میں بڑی غلطیاں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ وزراء جسے خاص طور پہ اسد عمر اور عامر کیانی 2 وزیر رہتے ہیں جنہیں وفاقی کابینہ سے ہٹایا گیا، مگر ان کے نام تاحال ابھی اس لسٹ میں موجود ہیں۔ اور جو نئی تعداد جو آئی ہے اس کے مطابق وفاقی وزراء کی تعداد جو ہے 25 ہوگی، جو کہ ابھی 24 ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جو نئے معاونین خصوصی ہیں انہیں وہ بھی شامل کر لیے گئے ہیں اور وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 13 ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ لسٹ کے مطابق وزیر مملکت جو ہے 5 ہے اور مشیروں کی تعداد جو ہے وہ 5 ہو چکی ہے، لیکن اس میں 4 موجود ہیں کیونکہ حفیظ شیخ جو ہے نئے مشیر تعینات کیے گئے ہیں مگر ابھی تک ان کو لسٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ تو یہ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے لسٹ جو جاری کی گئی ہے اس میں بڑی غلطیاں جو ہے وہ شامل ہیں، جس میں اسد عمر ابھی تاحال وفاقی وزیر براجمان ہے جبکہ حفیظ شیخ کا نام شامل نہیں کیا گیا، لیکن 3 معاونین خصوصی تھے جنہوں فردوس عاشق آوان ہے، ظفر اللہ مرزا اور ندیم باور، ان کے نام شامل کر لیے گئے ہیں مگر وہ دیگر جو نام ہے ان کے نام ابھی تک شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ شہباز احمد آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی 47 رکنی وفاقی کابینہ میں غیر منتخب اراکین کی تعداد بڑھ کر 16 ہو چکی ہے۔ وزارتوں میں ہونے والے رد و بدل کے نتیجے میں 4 منتخب اراکین اسمبلی کی جگہ اب 3 ٹیکنوکریٹس نے سنبھال لی ہے۔ وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے ٹیکنوکریٹس میں عبدالحفیظ شیخ، ڈاکٹر ظفر اللہ اور ندیم بابر شامل ہیں۔ فواد چودھری کی جگہ وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالنے فردوس عاشق آوان سامنے آ گئی ہیں جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ اعظم ضباطی کی ایک بار پھر کابینہ میں انٹری ہوئی، آج وزیر پارلیمانی امور کا حلف اٹھائیں گے۔ تبدیلی نہیں رہی، منتخب وزیر اعظم کی 47 رکنی کابینہ میں 16 غیر منتخب نمائندے آ گئے۔ تبدیلی نہیں رہی، رکن قومی اسمبلی اسد عمر کی جگہ ٹیکنوکریٹ عبدالحفیظ شیخ کی انٹری ہوئی۔
इलेक्शन हारने वाली फिरदौस आशिक अवान ने वजारत इत्तलात में फवाद चौधरी की जगह ले ली। आमिर कयानी से वजीर सेहत का कलमदान लेकर जफरुल्लाह के सपुर्द कर दिया गया। गुलाम सरवर की पेट्रोलियम की वजारत टेक्नोक्रेट नदीम बाबर के पास चली गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह ने वजारत दाखिला का चार्ज संभाल लिया, जबकि शहरयार अफरीदी को वजीर मुमलिकत बराए सफरान लगा दिया गया। मोहम्मद मियां सोमरो से एविएशन डिवीजन का इजाफी चार्ज ले लिया गया। अब वो सिर्फ निजकारी के वजीर होंगे। आजम सवाती की एक बार फिर काबीना में शमूलियत, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तैनात। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि दो बड़ों की जंग में असद उमर और शहरयार अफरीदी को हटाया गया है। असद उमर को मुल्की मईशत का कोई तजुर्बा नहीं था। इमरान खान ने चाइना के बिजनेस फोरम में अपने मुल्क की करप्शन की बातें की। ऐसे हालात में पाकिस्तान में कौन बिजनेस करना चाहेगा? मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मौलाना के मुतालबे की हिमायत करती है। जो मौजूदा हालात हैं, हमारा अपोजिशन का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि इमरान खान ने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है और आने से पहले उसने सारी कौम को एक सुहाने ख्वाब दिखाए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि एक धोखा दिया कि मैं मुल्क को इस समत पे चलाऊँगा। उसके पास असद उमर जैसा बंदे थे जिनको पाकिस्तान की इकोनॉमी की पूरी इल्म थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में अब तक 600 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स इस वक्त 37,400 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान 60,000 हिस्सेस का लेन देन हुआ। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, कहिएगा, मार्केट संभल रही है? जी, मार्केट संभलती हुई नजर आ रही है और यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान की जानिब से जो रद्दोबदल किया गया है, खुसूसी माशी टीम में जो रद्दोबदल किया गया है, उसको मार्केट ने मुस्बत लिया है। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट 620 पॉइंट्स जो है मुस्बत हो गई है और 37,400 और 32 के पॉइंट्स पर पहुंच गई है। तो मार्केट ने इस जो खबर है इस पर जो है अपने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है और सरमायाकार यही समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ईस्ट टू डू बिजनेस है और जो सरमायाकारी में इजाफा है वो होगा और वो नई सरमायाकारी कर सकेंगे, क्योंकि आने वाली नई क़यादत जो है वो सरमायाकारों के लिए कोई मुस्बत फैसले करने में कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। विफाक के बाद पंजाब में भी अहम तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब की आज कनाडा से वापसी थी, जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में पंजाब के सियासी मामलात पर बातचीत होगी। आपको बताएं कि विफाक के बाद क्या पंजाब में भी अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब ने आज कनाडा से वापस आना था, जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में पंजाब के सियासी मामलात पर बातचीत होने जा रही है। विफाक के बाद इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि पंजाब में भी कुछ अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। पंजाब में कब तक तब्दीली आ रही है? सहाफ़ी के सवाल का स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने जवाब न दिया। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, विफाकी काबीना में तब्दीली आ गई, क्या कहेंगे? चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आज़म को आईनी इख्तियार है, वो वज़रा के महकमे बदल सकते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पंजाब में तब्दीली के मुतालिक सवाल पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही पहले खामोश हुए। सहाफ़ी ने जब दोबारा सवाल किया कि वफाकी काबीना में तब्दीली आ गई है, इस पर क्या कहेंगे, तो चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म को आईनी इख्तियार हासिल है, वो वज़रा के महकमे तब्दील कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही से जब सहाफ़ी ने पहले सवाल किया कि वफाकी काबीना में तब्दीली आई है, इस पर क्या कहेंगे, तो इस पर उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। लेकिन जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने मोहतात अल्फाज में यह कहा कि वज़ीर आज़म को आईनी इख्तियार हासिल है।
जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आला ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिदा इजलास में 26 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। एजेंडे में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का मुसव्वदा, डेंगू की रोकथाम, पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटेजी एजेंडे में शामिल है। ऑडिटर जनरल पंजाब हुकूमत के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है, जबकि वज़ीर-ए-आला ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिदा इजलास में 26 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। वजारत मजहबी उमूर ने हज टूर ऑपरेटर कंपनीज की फहरिस्त जारी कर दी है। सहूलियत फराहम न करने पर 6 हज टूर कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया गया है। एक का कोटा मुअत्तल किया गया है। इन कंपनीज के खिलाफ हुज्जाज कुराम ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वजारत मजहबी उमूर ने दुरुस्त कारकर्दगी पर 798 टूर ऑपरेटर कंपनीज को क्लियर करार दे दिया। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन को हिदायत की है कि ब्लैक लिस्ट और मुअत्तल की गई कंपनी से हज पैकेज न ले। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि वजारत मजहबी उमूर ने हज टूर ऑपरेटर कंपनीज की फहरिस्त जारी कर दी है। सहूलियात फराहम न करने पर 6 हज टूर कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया गया है, जबकि एक का कोटा भी मुअत्तल कर दिया गया है। इन कंपनीज के खिलाफ हुज्जाज कराम ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वजारत मजहबी उमूर ने दुरुस्त कारकर्दगी पर 798 टूर ऑपरेटर कंपनीज को क्लियर करार दे दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता हज था और हज के बाद जो एक वजारत मजहबी उमूर की तरफ से कमेटी बनाई जाती है मॉनिटरिंग, जो हज टूर ऑपरेटर और जो कंपनियां हैं उनकी मॉनिटरिंग करती है कि किसकी कारकर्दगी क्या रही, तो उस जो कमेटी है उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 798 जो कंपनियां हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, वो क्लियर रही हैं, उनकी कारकर्दगी ठीक रही है। 6 जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है, जबकि एक जो है उसके खिलाफ जो शिकायत आई थी उसकी रोशनी में उसका कोटा मुअत्तल किया गया है। तो इस तरह जो आदमी हज हैं उनको वजारत मजहबी उमूर की तरफ से दरखास्त की गई है कि वो 798 जो कंपनियां जिनकी लिस्ट जो है वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पे जारी कर दी गई है, उनके अलावा जो है वो किसी के पास बुकिंग ना कराएं, ताकि कोई किसी किस्म का हाजियों के साथ जो है आज़मीन हज के साथ फ्रॉड ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर इंटर इम्तिहानात मजाक बन चुके हैं। आज ज़ूलॉजी का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड के तमाम दावों के बावजूद अभी तक तमाम पर्चे वक्त से पहले ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा चुके हैं। वालिदैन और तलबा ने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि वो इंटर के पर्चे आउट होने का नोटिस लें और इंतजामिया को मुतहर्रिक करके नकल माफिया को लगाम दें। जाली अकाउंट्स केस पे एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। नैब की जानिब से गिरफ्तारी सलीम फैसल को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। मुलजिम सलीम फैसल को एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम सलीम फैसल का 2 मई तक का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट्स में आज मजीद एक गिरफ्तारी हुई और नैब की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम सलीम फैसल को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। सलीम फैसल को एहतसाब अदालत की अदालत नंबर 1 जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम पर पार्क लेन रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया और करप्शन के इल्जामात है। तफसीलात से मालूम हुई, नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मोहम्मद इकबाल उसमें मुलजिम पर जायद असर से ज्यादा उसने करप्शन के फाकलिंग कंपनी में ताहम अदालत है। बशीर जज ने बताया कि मोहम्मद इकबाल नूरी का रिमांड जो है वो कब तक मंजूर हुआ है, जो कि जिसको कल पेश किया गया था। मुलजिम को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर 2 मई तक केस की समाअत मुलतवी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका। और अब बात करेंगे कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने के मामले पर। पीटीआई की 2 खवातीन रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। कंवल शौजब और मलाइका बुखारी की नाअहली के लिए दरखास्तों पर जवाब तलब कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज भी एक दरखास्त पर मलाइका बुखारी और कंवल शौजब से जवाब तलब किया था। कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने का मामला है। पीटीआई की 2 खवातीन रहनुमाओं पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है, जबकि दरखास्तों पर जवाब भी तलब कर लिया गया।
नंदी पुर रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। बाबर आवान का यूटर्न। बाबर आवान ने बरियत की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 23 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में मुबैना ताखीर की रेफरेंस की समाअत हुई। इस तगासे के गवाह तनवीर सईद बरलास का बयान कलमबंद किया जा रहा, जबकि डॉक्टर बाबर आवान कमरा अदालत में पेश हुए। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में सानेहाई मॉडल टाउन की नई GIT के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत को 30 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। 3 रुकनी बेंच ने सानेहाई मॉडल टाउन पर नई GIT को काम से रोकने के हुक्म इम्तिनाई में भी तौसी कर दी है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल फुल बेंच ने इंस्पेक्टर रिजवान कादिर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहाई मॉडल टाउन की नई GIT के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जबकि फुल बेंच ने पंजाब हुकूमत को 30 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने इंसानी जानों को बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर शहरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मुल्तान में भी शहरी महंगी अद्वियात पर हुकूमत पर बरस पड़े। अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं करेंगे। अद्वियात साज कंपनीज ने हुकूमत की एक नसूरी वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। मुल्तान में शहरी अद्वियात महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। तब्दीली सरकार को कोसते रहे। महंगाई तो इतनी हो गई है, गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो दवाई जो है ना 10 रुपए की गोली मिलती थी, अब वो 15 रुपए 16 रुपए की मिलती है। गरीब आदमी कहाँ जाए, अस्पताल जाए, वहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं वो करते। फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। शहरी मेडिसिन की अदम दस्तयाबी पर नाला नजर आए। मेडिसिन काफ़ी हद तक नायाब हो चुकी हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके बाद कैंसर की कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके बगैर पेशेंट मर रहा होता है, वो मार्केट में बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। पेशेंट बेचारे हाथों में पैसे लिए जगह जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रैक पर प्रोजेक्ट 20 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। केस में 3 तामीराती कंपनी से 1 करोड़ रुपए की गारंटी तलब कर ली। अदालत ने करार दिया है कि 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जहांसेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का लाहौर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील में सुस्त-रवी पर इजहार बरहमी। 20 मई तक मंसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। अदालत ने करार दिया 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तामीराती कंपनियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कंट्रैक्टर काम नहीं करते तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दे या जेल में डाल दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मेट्रो ट्रेन पर खतीर रकम खर्च हुई, ये कौमी मफाद का मंसूबा है। तामीराती काम के मायार को जांचने का कोई तरीकाकार है या नहीं, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट डरम से नीचे आ गिरे। केस की समाअत 15 दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई। जहांसेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज और मैनेजमेंट के 17 अराकीन पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला पहुंचा है। कोच पिकी आर्थर, कप्तान सरफराज समेत वर्ल्ड कप स्क्वाड के अराकीन की इमरान खान से मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म कौमी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से मुतालिक अहम टिप्स भी देंगे। वज़ीर आज़म को टीम सिलेक्शन से भी आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के 17 अराकीन पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला पहुंच गया है। कोच मिकी आर्थर, कैप्टन सरफराज समेत वर्ल्ड कप स्क्वाड के अरकान की इमरान खान से मुलाकात हो रही है।
اب آپ کو بتائیں کہ آرنلڈ کلاسک میس ریسلنگ چیمپئن شپ میں کامیابیاں سمیٹنے کے بعد قومی ریسلنگ ٹیم برازیل سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا، کھلاڑیوں پر پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ عطا محمد کی رپورٹ۔ آرنلڈ کلاسک ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں کامیابیاں سمیٹنے کے بعد قومی ریسلنگ ٹیم برازیل سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر جشن کا سما۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ سیلف اپنے خرچہ کر کے یہ لڑکے گئے تھے، ان کی مدد کی جائے اور ان کو ٹکٹ وغیرہ دیے تاکہ یہ پاکستان کا نام مزید روشن کر سکے۔ سلمان عقیل بٹ کی قیادت میں 3 رکنی ریسلنگ ٹیم کامیابیاں اپنے نام کی۔ رحمان رضا نے گولڈ میڈل جبکہ عاصم قیوم نے براؤن تمغہ جیتا۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچے ٹیم کا شاندار استقبال، ٹیم کی آمد پر پھول نچاور کیے گئے، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین شاہد علی کے ساتھ تام محمد، نیو نیوز لاہور۔ فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے پہلی مرتبہ قبائلی نوجوانوں کے اسپورٹس میلے کا اہتمام کیا ہے۔ ضلع خیبر کے جمرود اسپورٹس کمپلیکس میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل اور ثقافت عاطف خان نے شرکت کی۔ ضلع خیبر سے عبدالقیوم آفریدی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے قبائلی ضلع خیبر میں سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح، مختلف 32 کھیلوں میں 2600 کھلاڑیوں کی شرکت، جبکہ خواتین کے لیے بھی 5 گیم شامل ہے۔ مختلف روایتی رقص بھی پیش کیے گئے۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل عاطف خان نے کہا کہ صوبے میں 1000 کھیلوں کے میدان بنائیں گے۔ مطمئن رہیں کہ آپ کو توجہ دی جائے گی، آپ کی جو محرومیاں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی پورا کیا جائے گا۔ سپورٹس فیسٹیول میں والی بال، رسا کشی، فٹ بال سمیت دیگر کھیل 7 اضلاع میں ہوں گے جو 7 دن تک جاری رہیں گے۔ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، ضلع خیبر۔ آج کل کی بھاگ دوڑ میں سب کو اپنی پڑی، آئیں بات کرتے ہیں سب کے فائدے کی۔ اب کریمی کو دیکھ لو جو روز لاکھوں کو اپنی اداروں کی مشترکہ کارروائی کا عدم تنظیم کے 2 خطرناک دہشت گرد پکڑ لیے۔ دہشت گرد عظیم جان کا تعلق تورگھر اور انور کا ایبٹ آباد سے ہے۔ دونوں کو ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے مضافات سے گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار دہشت گرد نامور شخصیات کے قتل میں ملوث اور خودکش بمبار تیار کرتے تھے۔ عظیم جان کا گروپ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں ملوث تھا۔ اسی گروپ کے 1000 گنجی کوئٹہ میں دھماکہ کیا گیا جس میں 143 افراد شہید ہوئے، جبکہ یہ پرویز مشرف، چودھری اسلم اور مولانا اظہار الحق کے قتل اور ملک بھر میں دہشت گردی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اور اب موسم کا حوال۔ Brought to you by our weather partner Walls۔ ہر موسم میں کرو خوشیاں شیئر۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سندھ میں گرم رہے گا۔ حالیہ بارشوں کے بعد ملک میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ گرمی کے 27 شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہوگی۔ جبکہ جنوبی پنجاب میں طوفانی بارشوں نے کھڑی فصلیں تہس نہس کر ڈالی ہیں، لیکن ملتان سمیت دیگر شہروں میں تباہ حال فصلوں اور باغات کا تخمینہ نہ لگایا جا سکا۔ راجن پور میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ آسٹی کا بند ٹوٹنے سے آبادی شدید خطرات سے دوچار ہو گئی۔ ادھر بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں ڈیم پر کام کرنے والے مزدور سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری سے کھڑی فصلیں تباہ۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں تباہ ہونے والی فصلوں اور باغات کا تخمینہ نہ لگایا جا سکا۔ ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق صرف ای انشورنس پالیسی کے تحت بلا سود قرضہ لینے والے کاشتکاروں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ ادھر راجن پور میں سیلابی ریلے سے آسنی کا بند ٹوٹ گیا۔ پانی قبرستان میں داخل ریسکیو ٹیموں نے 2 روز پہلے ریلے میں بہہ جانے والے شخص کی لاش نکال لی۔
बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ताहाल रेस्क्यू न किया जा सका। वाना में भी हालिया बारिशों ने तहसील बरमल के इलाके हुमाई कुंडकाई किले में तहस नहस फेर दिया। उधर बदीन में कराची से बिठी जाने वाली मुसाफिर वैगन मोहजर के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए, मुत्तादिद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। कि वफाकी वजीर गुलाम सरवर वजारत तब्दील करने से नाखुश हैं। गुलाम सरवर खान को वजारत पेट्रोलियम से हटाकर एविएशन का वजीर बनाया गया है। गुलाम सरवर खान ने ताहाल वजारत का चार्ज नहीं संभाला। वफाकी वजीर ने वजारत से हटाने की सूरत में तहरीक इंसाफ छोड़ने की धमकी भी दी थी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर वजारत तब्दील करने से नाखुश नजर आ रहे हैं। गुलाम सरवर खान को वजारत पेट्रोलियम से हटाकर एविएशन का वजीर बनाया गया। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए जाने वाले सिख यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिख यात्रियों को कैसे खुशामदीद कहा जाएगा, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे राना अली से। राना अली रजा, बताइएगा इस बारे में। आज बिल्कुल बैसाखी मेला के सिलसिले में भारत और दुनिया भर से आए सिख यात्री जो हैं वो आज दरबार साहब करतारपुर में पहुंच रहे हैं। इस वक्त डीसी नारवल वहीद असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि इंतजामात को क्या तमीज़ शक्ल दे दी गई है। जी बिल्कुल, 1600 से ज़ायद सिख यात्री यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि उनके आने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, पार्किंग से लेकर उनके लंगर के इंतजामात और गुरुद्वारा के विज़िट के लिए। और फिर एक ये भी हमने ख़ुसूसी ख्याल रखा है कि वो जब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो जो ऑन गोइंग हमारा करतारपुर कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो उसको भी अच्छी तरह से अपनी नज़रों से देख लें, ख़ुद देखकर तसल्ली कर लें कि हमने उनके लिए किस तरह से किस स्केल पर हम इंतज़ामात कर रहे हैं और इसकी कितनी अच्छी एक एक्सपेंशन हो रही है गुरुद्वारा के लिए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से बात करने के लिए डीपीओ नारवल जुल्फ़कार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनका सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना है। इनके लिए बड़े फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने किए हुए हैं। आलमोस्ट 500 के करीब हमने अपने अफसर और मुलाजिम डिप्लाई किए हुए हैं और 3 टियर्स ड्यूटी लगाई हुई है और पूरे एरिया को सर्च स्वीपिंग के बाद जो है सिक्योर किया हुआ है। अगर इंतजामात के हवाले से मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर रेस्क्यू 11, 22 के भी जो मेडिकल कैंप लगाया गया और उसके बाद जो है डीसी नारवल और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से भी जो काफ़ी ज़्यादा करतारपुर बैसाखी मेले में जाने वाले सिख यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उनके लंगर और पार्किंग के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब आपको